and everyone. This is the India Read. As you know that in our previous lecture we have done history chapter number 11 part 1, and the name of the chapter was New Empires and Kingdoms, and today we are going to start the second part of the same chapter. Let's start. Yes, this is the history chapter number 11, and the name of the chapter is New Empires and Kingdoms of NCERT class 6, and remember this is part 2. Already in our previous lecture we have done part 1, and before delivering this lecture in part 2 I want to remind you that in our previous lecture we have gained knowledge about the new empires and kingdoms, नए शासन तथा राज्य. Especially we have gained knowledge about the prashastis. Prashasti is the second Sanskrit word which means in the praise of, मतलब किसी की प्रशंसा के लिए लिखना. Especially it has been written by the court poets of different rulers, जिसको अलग अलग शासकों के राज दरबारियों द्वारा लिखा गया. फॉर एग्जाम्पल हरिसेन, ओके, बाणभट्ट, रविकीर्ति, etc. So we have also gained knowledge about the genealogies, about the study of ancestry or Vanshavali, okay, and today we'll start from the Prashastis also related to the Pallavs and Chalukyas. तो हम चर्चा कर रहे थे नए शासन तथा राज्य, Prashasti of Pallavs and Chalukyas. Here we'll talk about the Prashastis that are related to the Pallavs and Chalukyas, as well as the greatest ruler of Chalukyas dynasty, application 2. Okay, according to the Prashastis that has been written in the favor of the Pallavs and Chalukyas, Pallavs and Chalukyas were the Pallavs and Chalukyas were the famous and powerful dynasties of South India in this period. इस पीरियड में, इस युग में पल्लव और चालुक्य जो डायनेस्टी थी, वंश था, वो काफ़ी फेमस था, काफ़ी प्रसिद्ध था, काफ़ी शक्तिशाली था, और जो कि दक्षिण भारत के एरिया में था. इस काल में हम उसकी बात कर रहे हैं. ओके, एंड विल आल्सो टॉक अबाउट द रीजन ऑफ पल्लव्स स्प्रेड फ्रॉम their capital Kanchipuram to Kaveri Delta, whereas the Chalukyas had a center of Raichatua, which was the region
between the river Krishna and तुंगभद्रा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पल्लव्स का एरिया था, पल्लव का शासन था, वो एक्सपैंड हो चुका था, फैल चुका था। उनकी जो उसमें राजधानी थी कांचीपुरम, कांचीपुरम से लेकर कावेरी के डेल्टे तक। डेल्टा इज अ वेरी फर्टाइल एरिया, वी कैन से दैट एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर कि डेल्टा एक उपजाऊ क्षेत्र एरिया होता है। कावेरी डेल्टे तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यास का जो मेन जो केंद्र था, सेंटर था, वो रायचर द्वाब था। द्वाब का भी हम यहाँ पर एक्सपैंड करेंगे मीनिंग, बट बिफोर दैट रायचर द्वाब तक, विच वाज द रीजन बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का एरिया था। सो स्टूडेंट, दोआब, तो इसका हम अगर बात करें, इट हैज ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दो प्लस आब। ओके, दो मीन्स जिसको हम दो कह सकते हैं, आब मीन्स पानी, वाटर। सो इट इज क्लियर दैट द region between the two water bodies or two rivers is known as Doab, as this was the region that was lie between the river Krishna and Tungabhadra. Okay. So this was about the Pallavs and Chalukyas, and here we also want to discuss one more point about these dynasties. This is in our previous lecture we have discussed that the Chalukyas dynasty and the most famous ruler was Pulakeshin II, the greatest ruler of Chalukyas dynasty was Pulakeshin II, and he was so powerful that he has defeated the powerful king Harshvardhan. And according to the court poet of Pulakeshin II, Ravi Kirti, that Harshvardhan, Harsh means harsh or happiness, but after defeating from the Pulakeshin II, the life of Harshvardhan became miserable. रवि कीर्ति जो कि दरबारी कविता पुलकेशिन II का, उनका भी कहना कि वो इतना महान योद्धा था कि उसने हर्षवर्धन को हराया था, और हर्षवर्धन उस दिन के बाद उसके जीवन में हर्ष यानी कि खुशी जो थी लगभग समाप्त हो चुकी थी। बट they were often attacking on each other, the Pallavs and Chalukyas, especially in their capitals and town cities. Okay, for the policies of expanding, अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर वो एक दूसरे के ऊपर अक्सर हमला करते रहते थे। एंड ड्यू टू दिस देयर पीरियड वाज शॉर्ट टाइम, उनका जो कार्यकाल था वो काफी थोड़े समय का रहा था। एंड दीज डायनेस्टीज gave way to new kingdoms like Rashtrakut and Chola। तो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के कारण, विस्तारवादी नीति के कारण ये ज्यादा समय आगे टिकाऊ नहीं रह सके और इनका पीरियड खत्म हुआ। और इसके बाद जो नए राज्य आए वो राष्ट्रकूट और चोल राज्य सामने आए। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एट दैट टाइम।
हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, मतलब उस समय का जो प्रशासन था, किस तरह से राजा लोग जो शासक थे वो अपना शासन करते थे, किस तरह से हैंडल किया करते थे. Actually, at that time, the ruler were very powerful, and they have tried to capture a huge army due to the policy of consolidation their force and their kingdom. अपने राज्य को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने they have organized the army, उन्होंने सेना का गठन जो था कर रखा था. Okay, and the rulers were also taking so many steps to win the favor of the person who was a very powerful economically, socially और politically. तो जो व्यक्ति काफ़ी पावरफुल होते थे उनको उस समय शासक अपने हक में कर लेते थे, जो राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से खुशहाल थे, ताकि उनकी मदद से वो अपने शासन प्रबंध को सही तरीके से चला सकें. And there were powerful persons and powerful people were hired to run the administration smoothly. तो राज्य को स्मूथ चलाने के लिए उसमें ऐसे शक्तिशाली जो लोग थे उनको जो है हायर कर लिया जाता था. As well as there were some of the posts were still based on heredity. तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि कुछ पद ऐसे थे राज्य में जो आज भी हेरिडिटी, वंश पर आधारित थे. The son was carrying or son was succeeding this type of post after his father, यानी कि एक बेटा अपने पिता के पद को हासिल कर लेता था. इस तरह की जो पोस्ट थी जिसको हम हेरिडिटी, उनके वंश के साथ जोड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Harisen was Mahadand Nayak, means the chief judicial officer like his father. यानी कि जो हरिसेन था, हरिसेन उस समय हरिसेन की जो पोजीशन थी, he was महादंड नायक, it means the chief judicial officer like his father. हरिसेन से पहले उसके पिता जो थे उनको महादंड नायक की उपाधि मिली हुई थी. महादंड नायक का मतलब अगर हम बात करें तो उसको हम कहेंगे चीफ जुडिशियल ऑफिसर, मुख्य न्यायिक अफसर. ओके, जो न्याय व्यवस्था की करता है या ऊपर हेड है उसको चीफ जुडिशियल अफसर कहते थे. और हरिसेन से पहले उसके पिता जो थे वो इस पोस्ट पर थे. एज वेल एज some persons were doing work under many posts. फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम लोग एग्जाम्पल देंगे. हरिसेन along with Mahadand Nayak was also Kumar Matya and संधि विग्रहिका. तो हरिसेन के पास एक पोस्ट तो पहले ही थी महादंड नायक की,
और इसके अलावा महादंड नायक के अलावा उसको कुमार अमात्य कहा जाता था। कुमार अमात्य मतलब चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड संधि विग्रह, संधि जिसको हम शांति पीस कह सकते हैं, समझौता कह सकते हैं, एंड मिनिस्टर ऑफ पीस एंड विग्रह जिसको हम युद्ध या वार कह सकते हैं। युद्ध या शांति का जो मिनिस्टर था वो भी उस समय ये साथ में था। ओके, तो इसके साथ साथ हम जो है चर्चा करेंगे the main source of income, the main source of income of the administration, it was the land revenue. Land revenue was the main sources of income of administration along with trade tax, tribute, etc. तो जो लैंड रेवेन्यू था, भूमि के लगान, भूमि का लगान जो था उस समय वो मेन था, शासन की आमदन का साधन था। और उसके साथ साथ जैसे ट्रेड टैक्स, व्यापार पर जो टैक्स लगता था वो आमदन का साधन था। ट्रिब्यूट दैट इज अ काइंड ऑफ टैक्स इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, जो तोहफे या उपहार टैक्स के रूप में राजा को मिलते थे। एंड ऑफन द लैंड रेवेन्यू टैक्स वाज कलेक्टेड बाय द वेरी पावरफुल पर्सन्स नेम्ड एज समन्स। लैंड रेवेन्यू collecting was performed by the powerful men known as, जो उस समय भूमि लगान था शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किया जाता था, जिनको हम लोग सामंत कहते थे उस समय। And these summons were so powerful that if the ruler was weak or unable to rule, they declared themselves independent. और ये सामंत इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि अगर कहीं राजा अयोग्य होता था या कमज़ोर होता था तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे और खुद राजपाट संभालने के लिए आगे आ जाया करते थे। ओके, now we'll talk about the assemblies, okay, in the southern kingdoms. Assemblies in the southern kingdom. Assembly means you can say that सभा, जिसको हम सभा कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं दक्षिण राज्यों की सभाएं। And from the Prashasti we can get knowledge about the assemblies of the southern kingdom। जो उस समय की प्रशस्ति लिखी गई थी उनसे हम लोगों को जानकारी मिलती है कि दक्षिण राज्य जो थे उनमें जो असेंबलीज होती थी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रशस्ति, द किंग्स एंड द ब्राह्मण हु वर आल्सो द लैंड ओनर्स वर हैविंग अ अपर हैंड एंड they were supposed to be speaking Sanskrit rather than the ordinary people were using the Prakritic language. Okay, तो जो सुपीरियरिटी उनकी दिखाई गई है प्रीस्ट्स की, पुजारियों की, उनके अकॉर्डिंग, और जो राजा था वो शक्तिशाली था, उनकी इम्पोर्टेंस थी, तो वो दिखाया गया है कि प्रशस्ति इसमें कि वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। जबकि दूसरी जगह पर हम बात करें कि जो साधारण लोग थे वो प्राकृत भाषा, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी,
वो यूज करते थे। These type of assemblies were often made there, उस तरह की भव्य assemblies वहाँ पर आयोजित की जाती थी। And they the assemblies were working through subcommittees। तो इन जो असेंबली सभा जो थी ये काम कैसे करती थी, इनके नीचे कुछ उप कमेटियां हुआ करती थी। एंड दे who performed the various work like जो अलग अलग काम के कार्य करते थे, जैसे कि इरिगेशन, एग्रीकल्चर, मेकिंग ऑफ रोड्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो असेंबलीज थी इनका काम था आगे सब कमेटीज के जरिए जो काम ये करवाते थे कि अलग अलग तरह के काम, इरिगेशन टू वाटरिंग दी क्रॉप्स और फील्ड्स, खेतों की या फसलों की सिंचाई करना, एग्रीकल्चर कृषि खेती बाड़ी, मेकिंग ऑफ रोड सड़कों का निर्माण, और टेम्पल्स या कुछ मंदिरों का निर्माण इसमें जो है शामिल था। As well as there were also some assemblies were there which were created by the ordinary peoples, including the merchants, traders, okay, and the common people। कुछ ऐसी सभाएं भी थी जिसमें एक छोटे किसान, व्यापारी, ओके, क्राफ्ट्समैन और आम लोग भी शामिल हुआ करते थे। Now we'll talk about the story related to the play of Kalidas, story of fisherman। Story of fisherman। तो इसमें हम एक मछियारे की कहानी को हाईलाइट करेंगे। एंड we know that at that time the greatest poet of Sanskrit was Kalidas, who remained in the court of Chandragupta II। We have studied in the previous lecture Kalidas, who was the greatest poet। तो उसने जो अभिज्ञान शकुंतलम प्ले लिखा था, the famous play of Kalidas। अभिज्ञान शकुंतलम okay, based on the love story of King Dushyant and young woman named शकुंतला। तो ये एक प्रेम कहानी है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि बड़ी फेमस है हिस्ट्री में आज भी, हिंदी के इतिहास में, जो बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत, जो एक राजे दुष्यंत तथा एक युवा और जिसका नेम शकुंतला था, उसके प्रेम प्रसंग के बारे में कहानी है। और इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ फिशरमैन। ओके, सो द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम दैट व्हेन King Dushyant falls in love with the young woman named Shakuntala, he offered her or presented her a very precious ring, okay, and one day suddenly it has been accidentally swallowed by the fish, okay। तो जब राजा दुष्यंत शकुंतला नामक युवा औरत से प्रेम करने लगा तो उसने उसको प्यार उपहार के रूप में एक अंगूठी दी, काफ़ी कीमती। लेकिन अचानक एक दिन एक्सीडेंटली, बदकिस्मती से वो उंगली जो अंगूठी थी
उसको एक मछली ने निगल लिया था अपने अंदर, ओके। बट आफ्टर दैट the concerned owner of the fish, the fisherman was there, who came back in the court to return this ring. तो वो इस अंगूठी को वापस करने के लिए मछियारा दरबार में आया, and the gatekeeper as well as the police officer considered him the robber as well as thief. तो उस समय जो वहाँ का जो गेट कीपर था या पुलिस ऑफिसर निरीक्षक था, उसने उसको चोर या ठग जो था रिगार्डेड किया। बट when the king Dushyant came to know about it, he became very happy when he came to know that he has got back his ring, and he declared the lot of rewards for the fisherman. तो इस तरह से जब राजा को ये अंगूठी वापस मिली तो इतना प्रसन्नचित हुआ कि उसने उस मछुआरे के लिए बहुत सारे इनामों की घोषणा कर दी। तो ये है द स्टोरी ऑफ फिशरमैन रिलेटेड टू द फेमस प्ले ऑफ कालिदास अभिज्ञान Shakuntala. Okay, and also now we'll talk about we can gain knowledge about this period and the dynasties and prashastis through some of the personalities like Fayan, Banbat, Hari Sen, and Ravi King. Okay, Fayan we have studied before that. He was a Chinese traveler who came in India and gave the detailed account of description what the incident he has seen. जो चीज़ें उसने देखी उसका वर्णन उन्होंने अपनी बुक में किया जो हमें शासन प्रथा के बारे में बताता है। Banbat, who was the poet of Harshvardhana, and he has written the biography of Harshvardhan named with Harshcharit. इसमें हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में उसने बताया। Hari Sen, who was the court poet of Samundragupta, who was regarded as the Napoleon of India, as well as Ravi Kirti, who was the court poet of greatest ruler of Chalukya dynasty, Pulkeshin II. तो इनके जो अकाउंट हैं उस समय के हिस्टोरिकल ऐतिहासिक नजरिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द किंग्स आर्मी। द किंग्स आर्मी, ठीक है। As we have discussed that the ruler was so powerful that he has organized a very typical and a very powerful army. जैसे कि हमने पढ़ा कि राजा इतना शक्तिशाली हो चुका था शासक कि उसने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया था। and he was traveling often with an enormous army. वो हमेशा एक बड़ी आर्मी के साथ आगे बढ़ता था। and along with the army there were some of the iron tools, pans, okay, iron tools, pans, weapons, as well as the spices, vegetables, along with the some of the birds and animals, rabbits, deer, horse, okay. And his whole army was surrounded by the musicians who often at that time playing the drums or trumpets. जो उस समय ढोल नगारे बजाते थे, ट्रम्पेट्स जिसको तुरही कहते हैं, तुरही बजाने से एक पाइप जिससे साउंड निकलता है, जिससे एक ढिंढोरा पीटा जाता है कि राजा आ गया है, काफ़ी जोश मचाया जाता है, ओके। एंड व्हेन ही वाज wandering from the towns or the village, it was major and it was necessary point for the people to offer them a good, okay, or ghee or a curd, or offer them a flowers or showering flowers on them. तो लोगों के लिए ज़रूरी था कि वो उनको रास्ते में दही गुड़ भेंट करें, उनके ऊपर फूलों की बौछार करें, राजा की जय जयकार करें। एंड सम टाइम दे वांटेड टू मीट द किंग रिगार्डिंग देयर रिक्वेस्ट्स और पटिशंस और कंप्लेंट्स। कई बार वो वहाँ पर राजे को रोककर मिलने की कोशिश करते थे ताकि वो अपनी मुश्किलें या फिर अपनी कोई प्रार्थना राजे के सामने रख सकें, जिसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना राजा के हित में था, उसके हाथ में था। बट सम टाइम
when the army was there, it was in the form of elephants, chariots, etc. The elephants destroyed the villages or town. कई बार ऐसी भी घटनाएं होती थी कि राजा की जो सेना थी उसमें जो हाथी थे वो काफ़ी हड़कंप मचाते थे, एंड समटाइम दे डिस्ट्रॉय दी हट्स एंड होम्स ऑफ द विलेजर्स। और कई बार वो राजे के जो हाथी होते थे सेना के, वो इवन गांव वालों की झुकी झोपड़ियाँ, घरों को भी नष्ट कर दिया करते थे। सो स्टूडेंट्स, this is all from this chapter, and I hope you are having better understanding. Okay, so please for your further updation, please like and subscribe our channel. Thank you very much.